Hello everyone, Jess Swaminathan, Professional Ethics. The subject code is 3150709, Semester 5, Professional Ethics. So let's discuss Unit 4. Professional Ethics. Unit 4. Ethical Decision. Ethical decision. So we are going to discuss in ethical decisions making in business, how ethical models that guide decision making, which approach to use, and many more things. So we are going to discuss ethical decision. So let's discuss first of all ethical decision. What does it mean? Ethical decision, it means it making refers to the process of evaluating and choosing among alternatives. जब आपके पास कोई alternatives होगा तभी आप कुछ evaluate कर सकोगे and you can choose and select in a manner consistent with ethical principles. Now you all are aware of the what is called ethics. What you are going to do, which is right and wrong, good and bad. You have to think moral decisions. Yeah. So it refers to the process of evaluating and choosing. तो whatever the choice and selection आपके पास आ रहा है वो alternate है. So it depends. You have to take a moral decisions at that times. In making ethical decisions, it is necessary to perceive. You have to feel and eliminate unethical options. Unethical options यानी कि lacking moral principles. Yeah, कि ethical decisions में it is necessary you have to feel and you have to be aware of moral principles and options and select the best ethical alternative. अगर आपको कोई भी बिजनेस में और कहीं भी आप जॉब कर रहे हो एंड एनीथिंग एल्स कहीं भी आप और यू हैव अ चॉइस ए सिलेक्शंस, यू हैव टू थिंक ट्वाइस एंड थ्राइस कि मैं जो सिलेक्ट करने जा रहा हूँ फॉर मी एंड फॉर माई एम्प्लॉयज़ फॉर मार्केट, इज़ इट राइट वे रॉन्ग वे, ये मोरल डिसीजंस मेरा सही है कि गलत है. यू हैव टू थिंक ट्वाइस. Ethical decision making models. Here we are going to discuss about models. Yeah, it provides also models like ethical decision making models which provides a suggested mechanism for critical thinking. Critical thinking, a person must have to become a creator of to become a critical thinking. You have to start to think in a critical way and planning for the resolution of the ethical dilemmas. You have to be planned कि मैं ethical dilemmas में कहाँ से मैं बाहर आऊँ. अगर मुझे ये मॉडल कोई भी मैंने सिलेक्ट किया उसमें से मैं कैसे हाउ कैन आई कम आउट ऑफ इट. यहाँ पर मैं आपको ये बात कहूँगी कि ethical dilemma it is a decision making problem. Ethical dilemma is a decision making problem between two possible moral imperatives. Two moral possible imperatives के बीच में जब आप कोई decision लेने जा रहे हो, it is called ethical dilemma. An ethical decision making model is a tool that can be used by health care providers to help develop the ability to think through an ethical dilemma and arrive at an ethical decision. Once you feel and then go through the ethical dilemma and to take a proper decision. An ethical decision making model is a tool that can be used by healthcare providers. It is a providers who is provider to healthcare providers who help the
who help and develop the ability to think an unethical dilemma also. A number of models are presented in the ethics literature, most of which are similar in design and content. The goal of each model is to provide a framework for making the best. इसमें से मुझे क्या बेस्ट लग रहा है मॉडल में से, बेस्ट डिसीजन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशंस with which the healthcare provider is confronted. So whatever the situations which you are facing, you have to think कि ये situation में मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ, और it depends on your choice, the way you the ideas which are coming on your mind, and which you the framework which you are selecting in between. Look at ethical models that guides decision making. Ethical models that guide decision making identify the ethical problem. Yeah, first of all, you have to identify the ethical problem, collect information, state the options. First of all, collect the information. More and more collect the information, state the options, apply ethical principles to the options. जो भी ऑप्शन हमने लिए वहाँ पर एथिकल प्रिंसिपल्स आप अप्लाई करिए अपने. देन टेक अ डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट द डिसीजन. मेक एंड उसके बाद इम्प्लीमेंट आपको डिसीजन करना है. हियर आई वुड लाइक टू टेक यूटिलिटेरियन अप्रोच. विच अप्रोच टू यूज़? या अगर आप सोचोगे कि कलेक्ट इंफॉर्मेशंस, take a decisions, go through it, but which approach to use? Number one, the utilitarian approach. Utilitarian is a theory of morality which advocates actions that foster happiness. The egoistic approach, self esteem आप देखोगे egoist में. The common good approach, you have to think twice कि what is good for me. The virtue approach, the rights approach, the fairness or justice approach. These are the approaches. Now one by one we go through it. The utilitarian approach, what it tells us. Utilitarian was conceived, it is an imagination in the 19th century by Jeremy Bentham and John Stuart Mill to help legislators. Legislators यानी a legislature is a deliberative assembly with the authority to make laws. Authority which make laws for a political entity such as कंट्री और सिटी. कंट्री और सिटी जो डिसीजन ले रही है वो लॉज को मायने रख के उसको उसके ऊपर फोर्स करके जो लॉज के हिसाब के नॉर्म्स के हिसाब से जो आप ले रहे हो. सो जेरेमी बेंथाम, स्टॉट एंड जॉन स्टॉट मिल, they help legislators, they determine which laws were morally based. तो दे बोथ गॉन थ्रू इट कि ये हमारे लिए, हम सबके लिए कौन सा अप्रोच बेस्ट है. बोथ बेंथाम एंड मिल सजेस्टेड दैट एथिकल एक्शंस आर दोज दैट प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट बैलेंस ऑफ गुड ओवर एविल. हमारे लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है, हमारे लिए गुड बैलेंसिंग क्या है. उन्होंने दे हैव टू थिंक कि ओवर इविल के दे हैव टू थिंक मोर एंड मोर कि एथिकल एक्शंस हम ऐसा कौन सा लें कि विच इज़ गुड फॉर ऑल द पीपल एंड बेटर meant for the society also. To analyze an issue using the utilitarian approach, when we are going to implement the utilitarian approach, we first identify the various courses of action available to us.
या जो भी एक्शंस आपके सामने आ रही है, यू हैव टू गो थ्रू इट, कि कौन से कोशिश आपके सामने आ रहे हैं. सेकंड, वी आस्क हु विल बी अफेक्टेड बाय ईच एक्शंस. या जो भी एक्शन ले रहे हैं तो हु इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड, ये किसको असर होगी इसकी, एंड व्हाट बेनिफिट्स और हार्म्स विल बी डिराइव्ड फ्रॉम ईच. किसको हार्म होगा और किसको बेनिफिट होगा, उनके लिए उन्होंने सोचा. And third, we choose the action that will produce the greatest benefits and the least harm. किसको कितना बेनिफिट्स हो सकता है इसमें से, जो भी एक्शंस, एथिकल एक्शन जो भी वो ले, उनमें से पब्लिक को, ऑर्गेनाइजेशन, हम सबको कितना बेनिफिट्स होता है, और लीस्ट हार्म, और कम से कम थोड़ा ही नुकसान हमें हो. The ethical action is the one that provides the greatest good benefits for the greatest number. So they have to think कौन से actions वो दोनों जॉन एंड जॉन स्टुअर्ट एंड बेंथम, they have think deeply which action is good for the public in a number. The egoistic approach, one variation of the utilitarian approach, is known as ethical egoism. Egoistic यानी self interest, या or the ethics of self interest also. A person who is going to select, वो अपना फ़ायदा देखेगा, अपना नुकसान नहीं देखेगा पहले. सेल्फ इंटरेस्ट. In this approach, an individual often uses utilitarian calculation to produce the greatest amount of good for him or herself. ये अप्रोच में एन इंडिविजुअल ऑफन यूजेस यूटिलिटेरियन कैलकुलेशन, कि हमारे लिए व्हाट इज़ मोर एंड मोर गुड फॉर अस, फॉर हिम और हरसेल्फ, कि जिसने अभी अग्री से वो, या ये वो पर्सन खुद अपने आप सोचेगा कि मेरे लिए क्या मोर बेटर है और क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है. यू हैव टू थिंक इट इन डीप. यू आर गोइंग टू डू कैलकुलेशंस. एंशिएंट ग्रीक सोफिस्ट्स लाइक थेरेंस माउस, who famously claimed that might makes right, वो कहता है that might makes right, कि कम से कम आपको फ़ायदा होना ही चाहिए. यू हैव टू थिंक योर राइट्स, अपने राइट्स कौन से हैं. एंड अर्ली मॉडर्न थिंकर्स, जो अर्ली जो मॉडर्न थिंकर्स थे, लाइक थॉमस हॉब्स, मे बी कंसिडर्ड फोर रनर्स ऑफ दिस अप्रोच. वो ईगोइज के फोर रनर्स थे, सबसे आगे सोचने का, कि कोई भी सोचे अपना फ़ायदा, उससे पहले हम हमारा सेल्फ इंटरेस्ट पहले देखें. One of the most influential recent proponents of ethical egoism was the Russian-American philosopher Ayn Rand, who in the book The Virtue of Selfishness, The Virtue of Selfishness in 1964 argues that self-interest is a prerequisite to self-respect. सेल्फ इंटरेस्ट इज़ अ प्रीरिक्विजिट, वो पहले आएगा. सेल्फ रिस्पेक्ट से पहले अ पर्सन थिंक्स अबाउट सेल्फ इंटरेस्ट, कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे क्या ऑप्शन सही है, विच इज़ मोर बेनिफिट फॉर मी, एंड टू रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. सो आर्यन रैंड, हु थिंक्स, he argues that self-interest is a prerequisite to self-respect. Self-interest is a prerequisite to self-respect. First of all, he emphasizes on self-respect, and then to respect to others, rather to think about only self-interest. There are numerous parallels between ethical egoism and laissez-faire, any free trade economic theories in which the pursuit of self-interest
self-interest is seen as leading to the benefit of society. Self-interest वो अपने आपको लिए नहीं, but he also think about benefit of society, although the benefit of society is seen only as the fortunate by product. जो भी मैं प्रोडक्ट अपनी कंपनी में कहीं भी मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, वो सोसाइटी को बेनिफिट है कि नहीं है. ऑफ फॉलोइंग इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट. सेल्फ इंटरेस्ट से पहले उसको यू हैव टू थिंक अबाउट बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, नॉट इट्स गोल. उसका ये भी गोल होना नहीं चाहिए कि जस्ट टू थिंक अबाउट सेल्फ इंटरेस्ट, बट सोसाइटी का भी सोचना चाहिए उससे पहले उसको. द कॉमन गुड अप्रोच. This approach to ethics assumes a society comprising individuals whose own good is inextricably tied. ये अप्रोच है जो सोसाइटी में कॉम्प्रोमाइजिंग है. इंडिविजुअल्स उस ओन गुड इज टाइड है, लिंक्ड है टू द गुड ऑफ द कम्युनिटी. कम्युनिटी में जो आप कर रहे हो, कॉमन गुड अप्रोच जो अप्लाई कर रहे हो, मोरल कोई भी डिसीजन ले रहे हो, वो टाइड होना चाहिए. कॉम्प्रोमाइज़ भी टाइड होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए टू ईच एंड एवरी पर्सन. कम्युनिटी मेंबर्स आर बाउंड बाय द परस्यूट यानी बिजनेस ऑफ कॉमन वैल्यूज एंड गुड्स. वॉट एवर द बिजनेस इज रनिंग इन देयर फील्ड, सो दे हैव टू टेक अ मोरल डिसीजंस when they go through it. They have to focus more on common values and goals also. So whatever goals they are going to fix in their minds, so हर एक को साथ में लेके उनको आगे बढ़ना है. The common good is a notion, it's a concept that originated more than 2000 years ago in the writings of Plato, Aristotle and Cicero. इनके राइटिंग्स में प्लेटो, एरिस्टोटल और सिसेरो के 2000 ईयर्स के पहले हमें जो कॉमन गुड कंसेप्ट था, एक कॉमन गुड वो हमें दिखाई देता था वहाँ पर इनकी राइटिंग्स में. मोर रिसेंटली कंटेम्पररी एथिसिस्ट, अभी कंटेम्पररी एथिसिस्ट है जॉन रॉल्स डिफाइंड द कॉमन गुड एज सर्टन जनरल कंडीशंस दैट आर, जो सर्टन जनरल कंडीशंस है, सबके लिए एक समान कोई कंडीशंस है, दैट आर इक्वली टू एवरीवन्स एडवांटेज. इक्वली टू एवरीवन्स एडवांटेज. वो जो वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग, जो भी आपने डिस्कशन किया, कंक्लूजन किया, कंक्लूड किया, सॉल्यूशन लाया, पर हर एक के लिए एक सरका होना चाहिए, एक समान होना चाहिए. फॉर ईच एंड एवरी मस्ट बी साइमल्टेनियसली, सबके लिए एक as equal. In this approach, we focus on ensuring that the social policies, social systems, we focus on ensuring social policies भी आएगी इसमें, social systems, institutions and environments on which we depend are beneficial to all. So whatever the decision, common good approach सोशल में आएगा, सोशल सिस्टम्स में भी आएगा, इंस्टीट्यूशन में आएगा, एनवायरमेंट्स में भी आएगा. बट अ पर्सन हैज़ टू गॉन थ्रू ईच एंड एवरी केस. आपके लिए सही है, इज इट गुड एंड बेटर फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इज इन्वॉल्विंग इन दिस. एग्जाम्पल्स ऑफ गुड्स कॉमन टू ऑल इंक्लूड अफोर्डेबल हेल्थ केयर हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, इफ़ेक्टिव पब्लिक सेफ्टी की बात हो, लेकिन हर एक के लिए कॉमन आइडिया होना चाहिए. पीस एमंग नेशंस, पीस होनी चाहिए एमंग नेशंस में. अ जस्ट लीगल सिस्टम एंड एन अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट. सो कॉमन गुड अप्रोच मस्ट बी अवेलेबल एट हेल्थ केयर की बात हो, हॉस्पिटैलिटी की बात हो, इफेक्टिव पब्लिक सेफ्टी की बात हो, कोई भी आइडिया, कोई भी नॉर्म्स, कोई भी नॉर्म्स आया तो सबके लिए एक समान होना चाहिए. पीस होनी चाहिए हर एक के नेशंस में, एंड जस्ट लीगल सिस्टम भी होनी चाहिए, एंड अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट. सो अ पर्सन हु ब्रेक्स द लॉ मस्ट बी punished.
सो अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट भी हम सबसे ही होगा. द वर्च्यू अप्रोच. The virtue approach to ethics assumes that there are certain ideals toward which we should strive, we should struggle. वर्च्यू अप्रोच में जो कॉमन गुड अप्रोच में उसमें भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है. विच प्रोवाइड फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ अवर ह्यूमैनिटी. वी मस्ट हैव टू थिंक अबाउट ह्यूमैनिटी कि फुल डेवलपमेंट हमारा जो वर्च्यू है, जो भी हम स्ट्रगल करके बाहर आ रहे हैं, सो ह्यूमैनिटी होनी चाहिए उसमें कि डेवलपमेंट पूरी सोसाइटी का हो रहा है कि नहीं. जो भी डिसीजन लिए एक समान होने चाहिए. एवरीबडी हैज़ टू फॉलो इट, मस्ट फॉलो इट. दीज आइडल्स आर डिस्कवर्ड थ्रू थॉटफुल रिफ्लेक्शन. या जो भी आइडल, जो भी आप अप्रोचेस सेलेक्ट करो, वो थॉटफुल रिफ्लेक्शन होनी चाहिए ऑन व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी हैव द पोटेंशियल. कि किस प्रकार के लोगों से हम मिलते हैं. पोटेंशियल का मीनिंग है कि हैविंग और शोइंग द कैपेसिटी टू डेवलप इनटू समथिंग इन द फ्यूचर. कि जो भी एक्शंस ले रहे हैं उसके फ्यूचर में उसका बेनिफिट, उसका एक्शंस, उसका कंक्लूड कैसे होगा. सो यू हैव टू थिंक इट, यू हैव टू टेक अ वर्च्यू अप्रोच टू बिकम सक्सेसफुल. Virtues are attitudes or character traits that enables us to be. Virtues traits, it's a one type of characteristic that enable us to be and to act in ways that develop our highest potential. Yeah, we also must have to develop our highest potential. I have to take a capacity होनी चाहिए to and we have to bind and tied norms. Whatever decisions are going to be taken, we have to be tied and linked with it. They enable us to pursue the ideals we have adopted. Whatever we have adopted, they enable us to pursue the ideals. Sometimes there are many problems are coming on our way, which are the focus is on. We have to go through it, like honesty, courage, that we must have to adopt. Courage, compassion, generosity, fidelity, loyalty, integrity होनी चाहिए. fairness, honesty, courage, it human beings में होनी चाहिए. self control and prudence यानी wisdom are all examples of virtues. कि ह्यूमन बीइंग जो भी हो, जो भी अप्रोच उसका हो फाइनली, लेकिन उसके अंदर ऑनेस्टी, खुद के पास के सेल्फ एस्टीम भी होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए. वो जो बटे वो डिसीजन इज टेकिंग, सेल्फ कंट्रोल, लॉयल्टी, बिकम जनरस डिसीजन उसका होना चाहिए. एंड बी फेयर वेर एवर ही और शी इज टेकिंग एनी डिसीजन्स, ही और शी ऑलवेज बिकम फेयर. Virtues are like habits that is once acquired. They become characteristic of a person. Yeah, अगर अपनी अच्छी virtues है, so it will be known in society by your characteristics. Then after your names. Yeah, ये character इसकी है, ये person की ये characteristic है. Moreover, a person who has developed virtues will be naturally disposed to act in ways consistent यानी coherent as it होगा. He or she must be transparent in his moral decisions, moral principles. The virtuous person is the ethical person also. So a person who is having disposed, a person who is having a coherent एंड कोहरेंस उसमें होगा, बी ट्रांसपेरेंट इन एवरी डिसीजंस. सो वो सोसाइटी में भी उसका नाम होगा. ये पर्सन मस्ट बी नोन बाय थ्रू हिज आइडेंटिटी. द राइट्स अप्रोच. ऑफ कोर्स मैनी डिफरेंट बट रिलेटेड राइट्स एग्जिस्ट बिसाइड्स दिस बेसिक वन. दीज अदर राइट्स
An incomplete list below can be thought of as different aspects of the basic right to be treated as we choose. राइट अप्रोच एक पर्सन के ऊपर के कौन सा राइट्स अप्रोच आप सिलेक्ट करने जा रहे हो. इनकम्प्लीट लिस्ट बिलो है. लुक एट हियर ऑन द राइट टू द ट्रूथ. द राइट टू द ट्रूथ. वी हैव राइट टू बी टोल्ड द ट्रूथ. या वी हैव राइट, हमारा हक है कि हम हमेशा सही बोलें. एंड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट मैटर्स दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट आवर चॉइसेस. या ये वो हमारे चॉइसेस पे डिपेंड है कि हम जो भी कह रहे हैं वो भी जो भी इंफॉर्मेशन वॉट एवर द मैटर्स इज़ देयर वो हम सही कह रहे हैं कि नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. द राइट ऑफ प्राइवेसी, कितना आप प्राइवेट कर रहे हो. वी हैव द राइट टू डू टू टेक एनी डिसीजन, believe and say whatever we choose in our personal lives. हमारे पर्सनल लाइफ में हमें कोई जो भी वॉट एवर डिसीजन वी आर टेकिंग सो बिलोंग एज वी डू नॉट वायोलेट द राइट्स ऑफ अदर्स. वी नेवर एवर वायोलेट द राइट्स ऑफ अदर्स. वी हैव टू थिंक अबाउट ओन राइट्स. नेवर एवर वायोलेट नेवर एवर एक्सक्यूज द राइट्स ऑफ अदर्स. वी हैव टू थिंक अबाउट आवर ओन राइट्स. द राइट नॉट टू बी इंजर्ड. या ऐसे राइट लोग जो किसी को इंजर्ड ना करें. वी हैव द राइट नॉट टू बी हार्म्ड. किसी को भी हार्म मत करो. और इंजर्ड अनलेस वी फ्रीली, हम फ्रीली हो या ना हो तो भी हम किसी को भी हार्म न करें, कभी नुकसान ना करें. एंड नोइंगली डू समथिंग, अगर आपको पता है कि हम कर रहे हो, डू डिज़र्व पनिशमेंट. अ पर्सन हु इज़ नोइंग कि जानने के बावजूद भी वो इज़ टेकिंग हार्म किसी को दे रहा है, अ पर्सन मस्ट बी पनिश्ड. और वी फ्रीली उसको पनिशमेंट होनी ही चाहिए. एंड नोइंगली चूज टू रिस्क सच इंजरीज, उसको कोई भी इंजरीज फ्रीली होनी ही चाहिए. देन ही और शी नोज कि हमारे राइट्स कौन से हैं और मेरे डिसीजंस मैंने कैसे लिए हैं. सो द राइट टू द ट्रूथ, प्राइवेसी और द राइट नॉट टू बी इंजर्ड, दीज आर द राइट्स अप्रोच. द राइट टू वॉट इज़ अग्रीड, हम किसके को कौन से पॉइंट पे अग्री है. वी हैव राइट टू वॉट हैज़ बीन प्रोमिस्ड, हमने कौन से प्रॉमिस किए हैं. बाय दोज विथ हुम वी हैव फ्रीली एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट. जो भी कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट पे आपने साइन किया है उसमें आने से पहले आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट आपने फ्रीली साइन किया उसमें आपने कोई प्रॉमिस किया हुआ है. सो यू हैव टू बॉन्ड योर सेल्फ विद द अग्रीमेंट ऑल्सो कि जो भी मैं कर रहा हूँ इज इट राइट और रॉन्ग. यू हैव टू थिंक इट ट्वाइस. द फेयरनेस और जस्टिस अप्रोच. The fairness or justice approach to ethics has its roots in the teachings of the ancient Greek philosopher Aristotle. Fairness or justice इसका roots है ancient Greek philosopher Aristotle who said that equals should be treated equally. Aristotle said equals should be treated equally. जो equal हैं उनको equally ही treated करो and unequals अनइक्वली. जो अनइक्वल मानते ही हम कि हम अनइक्वल है, वो थिंकिंग हो कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो अनइक्वल ही उनको राइट देना चाहिए. इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली. सेड बाय एरिस्टोटल. द बेसिक मोरल क्वेश्चन इन दिस अप्रोच इज हाउ फेयर इज एन ऑक्शन. या जो भी एक्शन है कितनी फेयर है. डज इट ट्रीट एवरीवन इन द सेम वे. क्या जो भी मोरल क्वेश्चन जो भी फेयर है वो क्या हर एक को ट्रीट एक सेम वे में करती है. और डज इट शो फेवरिटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन, कि हर एक के फेवर में है या उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन है, उसमें कोई भेदभाव है, कोई डिफरेंस है. फेवरिटिज्म गिव्स बेनिफिट्स टू सम पीपल विदाउट अ जस्टिफिएबल रीज़न फॉर सिंगलिंग देम आउट. बेनिफिट्स फेवरिटिज्म उसको मिलेगा जो फेवर में है, विदाउट अ जस्टिफिएबल रीज़न फॉर सिग्नलिंग देम आउट. जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो देख रहा है पर वो अपने
कोई पीपल हैं जो, बहुत सारे ऐसे थोड़े लोग हैं जो अपने खुद के जस्टिस के लिए ही सोचेंगे, नहीं कि कौन से रीज़न पे उनको जस्टिस मिला है. विदाउट अ जस्टिफिएबल रीज़न अ पर्सन थिंक्स अबाउट ओनली फेवरेटिज्म गिव्स बेनिफिट्स टू फेवरेटिज्म उसको मिलेगी हु थिंक्स अबाउट बेनिफिट्स टू सम पीपल विदाउट अ जस्टिफिएबल रीज़न फॉर सिंगलिंग देम आउट. उनमें से उनको बाहर निकाल के हमारे लिए फेवर कौन सा अच्छा है. डिस्क्रिमिनेशन इम्पोजेज बर्डन्स. डिफरेंस हमें बताएगा. इट इम्पोजेज बर्डन्स ऑन पीपल. लोगों के ऊपर बर्डन्स होते हैं, एम्फेसाइज होता है. हु आर नो डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन whom burdens are not imposed. डिस्क्रिमिनेशन इम्पोजेज बर्डन्स ऑन पीपल हु आर नो डिफरेंट. उनमें कोई डिफरेंस नहीं है फ्रॉम दोज ऑन whom बर्डन्स आर नॉट इम्पोज्ड. अगर बर्डन्स उस पर नहीं है तो डिस्क्रिमिनेशन भी उन पर नहीं होगा. बोथ फेवरेटिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन आर अनजस्ट एंड रॉन्ग. या फेवरेटिज्म एंड जो भी अनजस्ट और जो भी रॉन्ग डिसीजंस हो रहे हैं होते हैं वो फेयर नहीं है. फ्रेमवर्क्स फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग. These are we are going to discuss about frameworks for ethical decision making. Making good ethical decisions requires a trained sensitivity to ethical issues and a practiced method for exploring the ethical aspects of a decision. We have to think about the ethical aspects of a decision. जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो फ्रेमवर्क हमें खुद बनाना है. And weighing the considerations that should impact our choice of a course of an action. कि हमारे लिए जो भी एक्शन हम जो चॉइस है सिलेक्शन है वो हमारे लिए सही है कि नहीं है. Having a method for ethical decision making is essential. या जो भी मेथड आप सिलेक्ट करने चाहिए एथिकल डिसीजन मेकिंग वो हमेशा सही होना चाहिए. When practiced regularly the method becomes so familiar. जो प्रैक्टिस हम रेगुलरली करेंगे जो भी पथ पे हम हैं इट बिकम्स ऑलवेज बी हमेशा हम उस वो प्रैक्टिस से हमें फेमिलियर होंगे. द मेथड बिकम्स सो फेमिलियर दैट वी वर्क थ्रू इट ऑटोमेटिकली. या वी बॉन्ड इट, वी प्रॉमिस अवर सेल्फ विदाउट कंसल्टिंग द स्पेसिफिक स्टेप्स. कोई भी स्टेप्स नहीं पे वी हैव टू थिंक इट कि हमारे लिए क्या सही है मोरली. This is one reason why we can sometimes say that we have a moral institution. We have a moral institution. Moral intuition. Moral intuition होना चाहिए, moral decision लेना चाहिए about a certain situation. जो भी situation हो आपकी, but you have to take a moral intuition. वो सोचना चाहिए कि मेरे क्या सही है, even when you not consciously thought through the issue. वी हैव नॉट सीरियसली थिंक अबाउट कि कौन से इश्यू पे मैं सीरियसली सोच रहा हूँ, बट वी हैव टू थिंक इट, वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट. वी हैव प्रैक्टिस्ड एट मेकिंग एथिकल जजमेंट्स. वी हैव प्रैक्टिस्ड एट मेकिंग एथिकल जजमेंट्स ऑल्सो. वी हैव टू बी प्रैक्टिस्ड ऑल्सो when we are taking any ethical judgments. Just as we can be practiced at playing the piano. Yeah. And can sit and play well without thinking. प्रैक्टिस होंगी तो एथिकल जजमेंट्स कैसे हैं. जस्ट एज वी कैन बी प्रैक्टिस एट प्लेइंग द पियानो. जब यहाँ पर आई हैव शेयर एन एग्जाम्पल ऑफ पियानो कि ये प्रैक्टिस से हमें पता चलेगा यस इट प्लेज लाइक दैट, इट साउंड लाइक दैट एंड वी कैन सिट एंड प्ले वेल विदाउट थिंकिंग कि ये कैसे प्ले करेगा. सो but when we are taking any moral decisions we have to think it. Nevertheless, it is not always advisable to follow our immediate intuitions. कोई भी immediate intuitions को हमेशा फॉलो मत करो. आपको अगर सही लगे उसको ही फॉलो करिए. Especially in particularly complicated or unfamiliar situations. आपकी कोई भी complicated situations हो या unfamiliar situation, you have to think it very deeply. Here our method for ethical decision making should enable us to recognize
these new, we have to be recognized, be familiar with these new and unfamiliar situations and to act accordingly. We are whatever the new decisions, जो भी न्यू प्रॉब्लम्स पद आ रहे हैं, वी हैव टू बी गॉन थ्रू इट एंड अनफेमिलियर सिचुएशंस में हमें जाना पड़ता है. वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर अस. सो वॉट एवर डिसीजंस यू आर टेकिंग, यू हैव टू थिंक इट very deeply. Thank you very much, dear all.